Hello, CAT aspirants. Of course, CAT is around the corner. But yes, I'm very sure many of you are also aiming for SNAP. So that is why we are here for the quant mixed practice for the exam SNAP. So that if we are writing SNAP या हम जाने वाले हैं दिसंबर में SNAP देने, हमें आइडिया होना चाहिए कि ये पेपर में किस लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं. The level over here is going to be easier compared to the CAT, of course. बट यहाँ पे टाइम कम मिलता है आपको, तो आपको बस फटाफट फटाफट अटेम्प्ट करते जाने हैं और आगे बढ़ते जाना है. Here the another difference you will see from CAT is very much arithmetic and algebra dominating. यहाँ पर ऐसा नहीं है. राइट, यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन भी मल्टीपल मिल जाएंगे. राइट, थोड़े नंबर सिस्टम्स के भी ज़्यादा हो सकते हैं. राइट, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एल्जेब्रा अरिथमेटिक डोमिनेटिंग रहेगा. एल्जेब्रा थोड़ा सा लीनियंट साइड पे ही रहेगा व्हेन कंपेयर्ड विद द कैट. तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन द सेशन. लेट्स सी सम स्नैप क्वेश्चंस. My advice to you, after every question, take a pause, try it on your own, and then press that long key of spacebar and see that whether you got the answer correct or not. The idea is to be in the right speed. तो fast करने की कोशिश करना है इसको, ठीक है? चलिए, let's begin the sessions. My name is Rahul Batla, CAT 99.95 percentile. I hope many of you already know me. Let's start. Here's the question number 1. Start. Pause. All right, I hope you have paused it. Try it out on your own. Now it's my turn to do this particular question. I'm very sure you must have seen this kind of scenario. देखे देखे क्वेश्चन ही आएंगे यहाँ पे, है ना? Roy brought articles of rupees 20 per item, sells them for rupees 2, 4, 6 and so on. Intends to make at least a profit of 40%. What will be the minimum number of articles he should sell, right? So he's selling, if I talk about the SP, the first item at 2, then 4, then 6, nth item at 2n. This is the SP, right? What is the CP? 20 for 1, 20n for n articles, right? ये n articles की CP हो गई, ये n articles की SP हो गई. Now the question tells कि आप 40% का gain कर रहे हो. That means this multiplied by 1.4 gives you SP. That means this multiplied by 1.4 gives you SP. Game khatam. Solve it up and get the answer, right? Let's try. This becomes 28n. 2 कॉमन आ जाएगा तो आपके पास 1 + 2 डॉट 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 n. इसका सम आप जानते हो. ये भी इससे कट गया, चलो 14 हो गया. तो 14n इक्वल्स टू इसका सम n × n + 1/2. फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. n से n कट गया, 14 × 2 = 28 equals to n + 1. n comes out to be 27. Answer B for Batla. I hope you got the first one right. Right, तो easy. मैंने आपको जैसे बताया कि easier side पे आपको questions यहाँ मिलेंगे. The aim is to do them fast enough. Have you got the first one right? Let's jump to the second one. Again, pause the video and then only try. Right? A straightforward question on linear equation. I hope you have paused the video and tried it on your own. And now it's my turn. A and B have bags full of 1 rupees coins. कुछ 1 रुपये के कॉइन इसमें है, कुछ 1 रुपये के कॉइन इसमें है. मान लेते हैं इसमें B. टोटल वैल्यू ऑफ द अमाउंट ऑफ देम इज 45. अब सारे के सारे 1 रुपये के कॉइन है. अगर इसमें A 1 रुपये कॉइन है तो टोटल अमाउंट A हो गया. अगर इसमें B 1 रुपीज़ कॉइन है तो टोटल अमाउंट B हो गया, B × 1. और इनका सम आ रहा है 45. राइट, दैट्स योर फर्स्ट इक्वेशन. Now there was a hole in both the bags due to which 5 1 rupee coins were dropped from each bag. तो इसमें से 5 कम हो गए तो कितने बचे? A - 5. इसमें से 5 कम हो गए तो कितने बचे? B - 5. अब क्या हो रहा है? अब जब ये 5 को आपके कॉइन्स ड्रॉप हो गए, देन द प्रोडक्ट ऑफ द रिमेनिंग नंबर ऑफ कॉइन्स इन द बैग्स इज नाउ 124. तो इनका प्रोडक्ट अब 124 हो चुका है. फाइन, सो दैट्स इट. सिंपल सिनेरियो. ओके, कि आपके जब 5 कॉइन्स गिर गए तो ये 124 हो गया. नाउ डोंट गो इन दैट डायरेक्शन कि बी को 45 - a रख रहे हैं, फिर यहाँ पर डाल रहे हैं, क्वाड्रेटिक बना रहे हैं. यही आपसे स्नैप चाहता है कि आप ना करो, क्योंकि देन इट विल बी अ लॉट ऑफ टाइम टेकिंग क्वेश्चन, और वो हमने करना नहीं है. तो अब लगाना है दिमाग. तो कैसे? सोचो, 124 को तोड़ो. राइट,
124 अगर मैं देखूं तो 1 इंटू 124 से टूट रहा है, ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि उस कारण अगर आप देखोगे A6 हो जाएगा और B 129, सम 45 ही चाहिए। तो 124 बहुत बड़ा नंबर है, इससे B बहुत बड़ा आने लगेगा या फिर A बहुत बड़ा आने लगेगा, इतना नंबर नहीं होना चाहिए, राइट। ऐसे प्रोडक्ट तोड़ो जो 45 से छोटे रहे, करेक्ट और नॉट, और इंटीजर होना कंफर्म है, क्योंकि इनिशियली इंटीग्रल वैल्यू जो थी ना, ए 1 रुपीज कॉइन 10 होंगे तो 10 रुपये, 15 होंगे तो 15 रुपये, ऐसा तो हो नहीं सकता, 7.5 कॉइन थे। तो 1 और 124 में बात नहीं चली, और देखते हैं 3 से जा रहा है, नहीं जा रहा, 4 से जा रहा है, राइट। तो चलो 431 जा रहा है, 431 जा, राइट। नाउ दिस ऑफ कोर्स इज नॉट पॉसिबल, इसको हटा देते हैं। 4 और 31 दोनों 45 से कम है, हाईली लाइकली, और इसके बाद कुछ और टूटेगा भी नहीं, ये प्राइम आ गया है, तो मतलब इनमें से एक 4 है और एक 31 है, यस नो। तो अगर किसी को 4 मान लेते हैं, अगर A माइनस 5 4 हो गया तो A कितना हो गया 9, और B माइनस 5 31 हो गया तो B कितना हो गया 5 उधर गया, यानी कि 36। तो A भी आ चुका है, B भी आ चुका है, सम देखो 45 आ रहा है, यस। तो हिट एंड ट्रायल से काम आसानी से बन गया विदाउट एनी क्वाड्रेटिक और एनी स्टफ, 3 लाइन्स डन। नाउ द क्वेश्चन आस्क्स फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ कॉइंस, इन दोनों का प्रोडक्ट 360 माइनस 36 दैट इज 324। आपने देखा मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया, 36 इंटू 10 360 माइनस एक 36, तो पहले 10 से मल्टीप्लाई करके एक 36 गैप कर दिया, आंसर B 324। दैट्स हाउ द क्वेश्चंस आर सपोज्ड टू बी डन अंडर 1 मिनट, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई इट ऑन योर ओन एंड देन ओनली पॉज, देन ओनली प्ले द वीडियो, सॉरी, राइट। चलो ओके, आई होप यू हैव पॉज द वीडियो, गाइस, नो चीटिंग, है ना, फिर सीखोगे नहीं ना। चलो मान के चल रहा हूँ आपने अटेम्प्ट किया, फेयर अटेम्प्ट किया, है ना। अब मेरी बारी। इमरान सोल्ड अ मोबाइल फोन फॉर ₹17600, तो दिस इज व्हाट, दिस इज SP, राइट। तो SP कितनी हो गई आपकी 17600 आफ्टर गिविंग 12% डिस्काउंट, ओके। तो 12% आपने ड्रॉप करा होगा प्राइस, दिस वॉज योर MRP जो हमको पता नहीं है, फाइन। ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 10%, तो जो भी CP रहा होगा वहां से आप मार्कडअप पहुंचे होगे, ये सब करने में प्रॉफिट आपने बनाया 10% का। स्टैंडर्ड सिनेरियो ऑफ CP MRP SP, ये टेबल आपने जरूर पढ़ी होगी जब आपने प्रिपेयर के लिए प्रिपेयर किया होगा। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट अर्नड बाय हिम व्हेन नो डिस्काउंट इज गिवन, अगर हम यही हटा दें तो इसको कितना प्रॉफिट होता। द आइडिया इज वेरी सिंपल, हम निकाल लेते हैं मार्क्ड अप परसेंटेज, और हम जानते हैं कि अगर आप डिस्काउंट दो ही नहीं तो मार्क्ड अप परसेंटेज ही SP बन जाएगी, यानी कि जो प्रॉफिट है वो मार्क्ड अप परसेंटेज से ही आ जाएगा, ऐसा नो। अगर आप इसी पे बेच देते, इसी को SP कर देते, तो ये कितना बड़ा रखा है आपने CP से MRP जाने में, मार्क्ड अप परसेंट बड़ा रखा है, और इसे बेचोगे तो यही बड़ी हुई परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट बनने लग जाएगी। प्रॉफिट क्या है, कितना बढ़ा के बेचा, अगर यहीं बेच दोगे तो इतना बढ़ा के बेचा, ऐसा नो। तो चलिए फिर ये तो आसानी से निकाल लेंगे, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज निकाल लेते हैं, A प्लस B प्लस AB बाय 100, तो इसको मान लेते हैं अपन X, ये बड़ा होगा डेफिनेटली, ये डिस्काउंट है, ये प्लस है, तो X माइनस 12 माइनस 12X बाय 100, A प्लस B प्लस AB बाय 100, ये नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि ये डाउन जा रहा था, डिस्काउंट था, और नेट परसेंटेज चेंज कितनी है, प्लस का 10, हमें पता है, 12 उधर जाएगा बना देगा 22, राइट। 4 3 जा 4 25 जा, 25 माइनस 3 यानी कि 22x अपॉन 25 इक्वल्स टू 20। तो इक्वेशन आ चुकी है दोस्तों, मेरे ख्याल से इसके आगे आप गेम निपटा दोगे। 22 1 जा 22 1 जा, x की वैल्यू कितनी आ गई 25, आंसर C फॉर कैट, इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। बस पहचानना है कि अगर आप इसी को लेटर ऑन जाके SP बना दोगे तो मार्क्ड अप परसेंटेज बढ़ना, प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ना सेम बात है, फिर यही तो ये बन जाएगी ना, करेक्ट और नॉट। इफ यू सेलेक्ट द SP MRP as if you select the MRP itself then the marked up percentage is the profit percent, right। चलिए आगे बढ़े, क्या हो गया, लेट्स गो, try this one, question number 4, linear equation question, straightforward, you should get it directly। चलो पॉज द वीडियो, बात बनी, ट्राई करें, ऑलराइट लेट्स गो, माय टर्न।
ड्यूरिंग एन इवेंट 160% participated. Participants were grouped into male and female. Okay, 1240 एप्पल्स हो गए. पहले मेल पकड़ लेते हैं हम, फीमेल पकड़ लेते हैं एफ. एम प्लस एफ है 160. 1240 एप्पल्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करे जा रहे हैं. मेल गेट 7 एप्पल्स, तो मेल पे 7 एप्पल्स लग गए. फीमेल गेट्स 12 एप्पल्स, तो फीमेल्स पे 12 एप्पल्स लग गए. मिला के 1240 लगे. शाबाश. अब हमसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स. ओके, फीमेल्स पूछ रहा है, एफ निकालना है. एम एलिमिनेट करते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 7m प्लस 7f इक्वल्स टू 160 इंटू 7. अच्छा, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, राइट. कॉमन ओवन लेंगे ना यार, कौन स्ट्रेस ले, राइट. तो चलिए बात आगे बढ़ाते हैं. सब्ट्रैक्ट करें, ये गया दिस माइनस दिस इज 5f इक्वल्स टू 1240 माइनस 7 इंटू 160, राइट. 5 से इसको काटते हैं, 5 2 जा 10, 2 बचेगा इस जीरो का बस, तो 124 इंटू 2 248 माइनस 5 2 जा 10, इसका 2 बचेगा, 7 इंटू 32. अब अगर मैं देखूं तो 32 कॉमन भी आ रहा है शायद. 32 कॉमन आ रहा है क्या? 7 3 जा 21 3 38 32. अच्छा, 8 से जा रहा है, 8 कॉमन आ रहा है, 8 आ रहा है कॉमन, 8 उड़ाते हैं, ठीक है. तो 8 कॉमन आ गया, ये बना 31 माइनस इसका बचा 8 4 जा 4 7 जा 28. 31 माइनस 28 3 इंटू 8 24. तो कॉमन लेने से क्या हुआ, मेरे को ये कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, मेरा गेम सिंपल हो गया. दैट मीन्स द नंबर ऑफ फीमेल्स आर 24. ध्यान रखो छोटी छोटी चीज़ें मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ. यहाँ मल्टीप्लाई किया नहीं, जब 5 काटना था तो ये 124 इंटू 10 लिखा है, ये 16 इंटू 10 लिखा है, ये जीरो उड़ा दिया और समझो कि इस 10 का इसने 2 बना दिया. 2 इंटू 124 248. इस 10 का इसने 2 बना दिया, 2 16 का 32. ऐसे करता हूँ मैं. 5 उड़ाने का बेस्ट तरीका है अगर इधर जीरो हो तो, राइट. चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. अब देख लो किस स्पीड से आप क्वेश्चन कर पाओगे. करेक्ट. तो स्पीड पकड़ी जा सकती है इफ द मेथड्स आर नाइस. हैव अ लुक. 3 4 लाइंस, 3 4 लाइंस, 3 लाइंस, and the last one 3 4 lines, right. So your methods have to be accurate, otherwise फिर वो हो नहीं पाता है टाइम में, right. चलिए क्वेश्चन नंबर 5. ट्राई पॉज. इन सब पे मैंने डिटेल वीडियोस यूट्यूब पे ही बना रखी है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगी, राइट. ये रिमूवल रिप्लेसमेंट एरिथमेटिक की तो पूरी प्लेलिस्ट है, कंप्लीट एरिथमेटिक राहुल बाटला करके आप सर्च करिए, आपको मिल जाएगा, राइट. कंटेनर है द मिक्स कंटेनिंग 3/4 मिल्क. हो गए. तो हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें मिल्क जो है वो है 3/4. परफेक्ट. और फिर आप क्या कर रहे हो, डाइल्यूट कर रहे हो मिक्सचर को विद वाटर, ठीक है. कैसे? फाइनल मिक्सचर कंटेन्स हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर. हाउ मच ऑफ द लिक्विड विल बी एक्सट्रैक्टेड एंड रिप्लेस विद द वाटर. तो आप डाइल्यूट कैसे कर रहे हो, लिक्विड एक्सट्रैक्ट कर रहे हो और फिर रिप्लेस कर रहे हो. तो रिमूवल रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन. तो अगर अब आपने इसमें से कुछ रिमूवल किया, फिर रिप्लेसमेंट किया और ये सब करने के बाद आपका जो मिल्क है वो हाफ पे रह गया, तो मैंने तो बोल रखा है आपको कि आप मान लो कि जो लेफ्ट ओवर फैक्टर था वो के था. तो आपका पहले मिल्क का रेशियो चल रहा है 3/4, लेफ्ट ओवर फैक्टर है के, आपने मान रखा है. फाइनल फैक्टर मिल्क का कितना है, हाफ. के की वैल्यू आपके पास आ गई, 2 1 जा 2 2 जा के आ गया 2/3. ये लेफ्ट ओवर फैक्टर का कंसेप्ट आप आसानी से देख सकते हो जो मैं आपको वीडियोस बता रहा हूँ. कुछ सिंपल जगह रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट राहुल बाटला एमबी वाला मिल जाएगा. के आ गया 2/3. नाउ दैट वाज योर लेफ्ट ओवर फैक्टर. अब अगर लेफ्ट ओवर फैक्टर 2/3 है तो रिमूवल फैक्टर कितना रहा होगा, 1 - 2/3, यानी कि 1/3. आंसर, गेम खत्म. तो 1/3 रिमूव एंड रिप्लेस था. दैट्स इट. We're already done. Again 4 lines. The method has to be spot on, right. The concept has to be there. Right now we stand when the exam is just 1 month ahead. तो अब इस लेवल तक बात पहुंच जानी चाहिए. Okay, let's go. Question number 6. Try it on your own. चलो ट्राई करो गाइस, पॉज करो, खुद से करो, है ना, कुछ फन तो आए. चलो, आई एम अज्यूमिंग आपने ट्राई किया, है ना. क्विक क्वेश्चंस करेंगे, क्विक क्वेश्चंस, सो दैट हमें आइडिया मिले
कि हम स्पीड मेंटेन कर पा रहे हैं कि नहीं, है ना। So let's try. Shopkeeper mixes two types of sugar. If the mixes them in the ratio of 3:2, his profit is 10%. And if he mixes them in the ratio of 2:3, his profit is 5%. Selling price of the mixture same है 40. Okay. तो अगर मैं 3:2 के रेशियो में बांट दूं, राइट, मान लेते हैं पहली वैरायटी x की है, दूसरी वैरायटी y की है, हमारा CP कितना हो गया 3x प्लस 2y अपॉन 5, राइट। V1 C1 प्लस V2 C2 अपॉन V1 प्लस V2, दिस इज आवर CP। और अगर आप ऐसी CP रखो तो आपको 10% का प्रॉफिट होता है, यानी आप इसको 1.1 मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको SP मिल जाएगी। 10% प्रॉफिट मतलब 10% बढ़ाना CP को, यानी 1.1, और आपको मिलेगी आपकी SP जो कि 40 है, क्योंकि वो तो फिक्स है। तो CP इंटू प्रॉफिट परसेंट के हिसाब से जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 10%, राइट, इक्वल्स टू SP। ऐसे ही दूसरे इक्वेशन बनाते। दूसरी इक्वेशन क्या कह रहा है कि अगर आप 2:3 के रेशियो मिक्स कर देते इस x और y को, तो आपका CP कितना होता है 2x प्लस 3y अपॉन 2 प्लस 3 यानी कि 5, और इस केस में आपको होता 5% का प्रॉफिट, यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.05 का, और SP आपकी अभी भी 40 रहती। ऐसे मिलाओगे 10% का प्रॉफिट होगा 40 में बेच के, ऐसे मिलाओगे तो 5% का प्रॉफिट होगा 40 में बेचने में। इक्वेशन इज क्लियर। 40 को बीच में से गायब कर देते हैं, इन दोनों को इक्वेट करते हैं, x:y आ जाएगा, वही चाहिए रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस, राइट। तो ये आ चुका है इक्वेशन। 40 उड़ा देते हैं, हम कहते हैं ये किसी काम का नहीं है हमारे, ये इक्वल टू ये कर दो, दोनों ही 40 के बराबर थे। तो खेल खेलते हैं, 5 मारा जाने वाला है, ये भी उड़ाते हैं, ये हो गया 522 जा 110 लिखा है, ये 105 लिखा है, 521 जा, पॉइंट उड़ा दिए, 110 105 खत्म बात। ये हो गया 66x प्लस 44y, ये हो गया 42x प्लस 63y, राइट। चेक कर लेते हैं एक बार कैलकुलेशन। 5 से 5 उड़ा एब्सोल्युटली, 522 जा 521 जा, राइट। 66x प्लस 44y, 42x प्लस 63y, एब्सोल्युटली परफेक्ट। ये 42 इधर जाएगा, कितना बनेगा 24x, 44 उधर जाएगा, कितना बनेगा 19y। तो x अपॉन y आने वाला है 19/24, दैट्स ऑप्शन बी फॉर बाटला। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, 4 लाइन ओवर। मिक्सचर में स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी आना चाहिए, V1 C1 प्लस V2 C2 अपॉन V1 प्लस V2। नहीं आता है, मामला गड़बड़ है, उसको देखो। ओके, सॉर्टेड। चलिए लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस सी व्हाट इट इज बेस्ड ऑन। ओके, इट्स बेस्ड ऑन एवरेज। चलो ट्राई, मुझे बताना लास्ट में, ठीक है, आप लोग से कितने बने। आई एम प्लानिंग टू टेक समवेयर अराउंड 15-16 क्वेश्चंस। गिव मी आइडिया इन द एंड ना, कितना बन रहा है भाई, फन तो आए। 4 different positive numbers are written in ascending order. Okay, so we have 4 different numbers written in ascending order. 1/4 of the average of all the 4 numbers. Okay, let the 4 numbers be A, B, C, D. इनका एवरेज कितना हो गया A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस 4। देखो लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड पढ़ो, ये हो गया एवरेज, और आप बोल रहे हो 1/4 ऑफ देयर एवरेज, तो 1/4 ऑफ देयर ऑल एवरेज। अब ये एवरेज है 24 लेस देन द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट ये है, और ये ग्रेटेस्ट से 24 कम है भाई। ओके, एक इक्वेशन तो आ गई। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इज 32, ओके, इन तीनों का एवरेज अगर 32 है तो A प्लस B प्लस C तो पता चल गया, एवरेज 32, यानी सम कितना हो गया 3 इंटू 32, है ना भाई। A प्लस B प्लस C अपॉन 3 32 करते, फिर 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करते, बात एक ही। सम कैसे निकलता है, नंबर ऑफ नंबर्स इंटू एवरेज। कितने नंबर है 3, एवरेज कितनी है 32, तो 3 इंटू 32, इनका सम कितना हो गया 96, खत्म बात। ग्रेटेस्ट नंबर D निकालना है, A प्लस B प्लस C पता, यहाँ डालो, खत्म करो, राइट। तो ये कितना हो गया 4 4 जा 16, 16 उधर चला जाएगा, राइट। तो 1/4 ये कितना हो गया 96 प्लस D/4 इक्वल्स टू D माइनस 24। तो 16 उधर, 96 प्लस D इज इक्वल्स 4 16 उधर, 16D माइनस 16 इंटू 24। देखो मैं मल्टीप्लाई करने में अभी भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं देखूंगा बाद में, काट पाट लेंगे जो भी है।
तो डी निकालना है, इसको इधर लेके जाते हैं, डी को उधर लेके जाते हैं, वी हैव डी इधर गया, बना कितना 15D, राइट, ये इधर चला गया 15D, ये आदमी इधर आ गया यानी 96 प्लस दिस हो गया 96 प्लस 16 इंटू 24। अब देखो या तो तुम पकड़ लो 16 6 जा 96, या तुम पकड़ लो 24 4 जा 96, पर कुछ तो पकड़ो, राइट। तो मैंने कहा कि एक काम करते हैं 24 कॉमन ले लेते हैं, 24 4 जा, इधर का 16 रह जाएगा, 5 3 जा, और ये कितना है 20, तो 5 4 जा, 3 1 जा, 3 8 जा, डी कितना आ गया 8 4 जा। तो आई डोंट प्रेफर टू मल्टीप्लाई बिग नंबर्स, आखिरी में कॉमन कॉमन वो अपने आप बन जाएगा, कौन टाइम खराब करेगा, यहाँ भी कैलकुलेशन बचेगी वहाँ भी बचेगी। D is 32, so largest number is 32. A for Agra is your answer. Got it? Simple. Let's go. चलिए एक और सवाल, क्वेश्चन 8, बेस्ड ऑन अ लिटिल बिट ऑफ DI चार्ट, ट्राई करें इसको, मैं हट जाता हूँ, चलो। I hope you have paused it, tried it on your own, and now it's my turn. Here are male population above education index for UP is 1.6 lakhs. Okay, so what is this? This is एक तो अबव जाना है एजुकेशन इंडेक्स के, और उसमें भी मेल वाली पॉपुलेशन पकड़नी है, ये लोग हैं 1.6 लाख। देन फाइंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ यूपी। ओके, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। टेबल देखते हैं, टेबल कह रही है ये स्टेट है, हम इसमें इंटरेस्टेड है यूपी में, तो ये बता रहा परसेंटेज पॉपुलेशन बिलो, बिलो तो चाहिए नहीं हमें, तो अबव चाहिए, तो 16 जो है वो है बिलो एजुकेशन इंडेक्स, तो बिलो नहीं चाहिए भैया, हमें चाहिए अबव, तो दिस इज नॉट गोना वर्क फॉर अस, राइट, वी आर लुकिंग फॉर अबव, तो 16 बिलो है, तो 84% पॉपुलेशन जो है वो अबव आपकी एजुकेशन इंडेक्स है, बट हमें तो इसमें भी मेल चाहिए ताकि यूनिटरी लगा पाए, क्योंकि वो जो 1.6 लाख का नंबर हो तो मेल का है। तो अब जाते हैं, देखते हैं कि भाई जब अबव एजुकेशन इंडेक्स वाले एरिया में जाते हैं तो वहां मेल और फीमेल का रेशियो क्या है 5:1, तो यानी 84% जो है वो 5:1 बटे हुए हैं मेल और फीमेल में, राइट। तो तोड़ो, 5 1 6 6 1 जा 24 4 जा 14 5 जा 70% मेल है, राइट, 5 14 जा, हाँ राइट, एंड 14 ये है, परफेक्ट सॉर्ट हो गया, मतलब 70% ऑफ द पीपल आर मेल हु आर अबव योर एजुकेशन इंडेक्स, और ये 70% कॉरस्पॉन्ड करता है 1.6 लाख को। अब हमसे पूछ रहे हैं टोटल पॉपुलेशन क्या है, तो अगर 70% 1.6 लाख को कर रहा है, अब तो यूनिटरी लग गया, 70% corresponds to 1.6 and you're asking me 100% corresponds to what, right? तो देखो दिमाग थोड़ा सा लगाते हैं, अगर 70% 1.6 है तो 10% निकालना बड़ा आसान है, राइट, कैसे, 7 से डिवाइड कर दो, isn't it? भाई 70 से 10 पे जा रहे हो, 7 से डिवाइड करो तो 1.6 बाय 7 कर दो, कितना आ गया भाई साहब, ये आ गया 0.2, 16 हो गया ना, जैसे ये टाइम मैंने पॉइंट डाला 16/7 2, फिर 20 बचेगा 2, फिर आपका 14 60 बच जाएगा, लगभग 8.228 है, 10% 0.228 लाख, तो 100% कितना हो गया 2.28 लाख, राइट। तो आपने देखा मैंने कैसे पकड़ा, मैं 70 से 10 पे चला गया और 10 से मैं 100 पे चला गया, क्योंकि यहाँ से 10 पे जाना आसान था, 7 नीचे भेज दो 10 पे आ जाओगे, 10 से 100 पे जाना आसान था, 2.28 लाख, दैट्स ऑप्शन ए, राइट। तो जो आपको रेफरेंस पॉइंट दिया है वो क्या था, अबव एजुकेशन इंडेक्स में मेल का, तो पहले हम अबव एजुकेशन इंडेक्स गए, ये बिलो था तो इससे अबव पे गए, फिर अबव से मेल फीमेल में मेल पे गए, 70% लोग मेल हैं जो अबव एजुकेशन इंडेक्स है विच कॉरस्पॉन्ड्स टू 1.6, फिर यूनिटरी लगेगा गेम खत्म, राइट। चलिए, आई होप यू गॉट इट, लेट्स गो टू आवर क्वेश्चन नंबर 9। सो व्हाट आई वांट इज कि क्विक टाइम में आप बहुत सारे क्वेश्चंस देख लो स्नैप ओरिएंटेड, ताकि लेवल का भी पता चल जाए, आइडिया भी लग जाए, है ना। अब इसलिए स्लो नहीं कर सकते, तभी मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप पॉज करके ट्राई करिए,
right? So this video will be somewhere around 40-45 minutes, but for you it should be somewhere around 1 hour to 1 hour 10 minutes. ये 2 घंटे लेके बैठे हुए इसको. No, if you're sitting with this video for 2 hours long now, guys, speed has to be pushed up now. Chala. 3 friends, Sonu, Monu, Romu, play cricket. Okay, they scored 342 runs in total. Total 342 है. A ratio scored by Sonu to Monu is 3:2. Fine. And the ratio of runs scored by Monu to Romu is 3:2. तो combined ratio में आता है 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 and 3 3 जा 9. रेशियो आ चुका है. दैट्स इट. नाउ मान लेते हैं इसके 9 रन, इसके 6 रन, इसके 4 रन, तो टोटल मिला के कितना हो गया 19. बट हमें तो पता है कि एक्चुअल में 19 नहीं बनाए, मिला के कितने बनाए इन्होंने 342. तो 19 कॉरेस्पॉन्ड्स टू 342. देन द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय रोमू हमारे हिसाब से 4 बन रहा है, तो 19 342 है, तो 4 कितना होगा. 19 से जा रहा है क्या, 19 8 जा रहा है शायद, है ना. 19 1 जा 19, फिर 152 8 जा, राइट जा रहा है. 19 18 में जा रहा है. 19 1 जा 19, 152 152 यस 8 जा रहा है. 18 जा रहा है, तो 4 भी 18 जा हो जाएगा. 18 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है. फ्रॉम योर assumption to the question value 4 18 जा 72. That means the answer is C. Again 3 lines. Again I would like to take your minute and wish to show you again the approaches. It never goes beyond 20 to 30 words or 3 to 4 lines, right? The approaches need to be spot on, guys. Otherwise these competitive exams becomes out of our scope only because of one reason, not because we don't have the knowledge, because we are not fast enough, right? क्योंकि ये सब बहुत ही ज़्यादा time based हो जाते हैं. CAT still is gonna have difficult questions, तो 7-8 करने ढूंढने, selection come into picture and all. And MAT SNAP are 2 exams जो बहुत ज़्यादा speed based है. CAT and ZAT are different, right? चलो PNC question try. आपकी बारी, try करिए. Letter of the words minute be arranged such that the vowels occupy only odd positions. All right. So consonants are M, N, and T. Vowels are I, U, and E. We have 6 places, and I want vowels to be at the odd positions. That means we have 3 vowels and 3 positions for vowels. So vowels occupy odd, and automatically the consonants occupied even. So vowel 1, vowel 2, vowel 3. 3 vowels, 3 places. Arrange vowels. Consonant 1, consonant 2, consonant 3. 3 places, 3 consonants. Arrange consonants. So 3 factorial into 3 factorial. 6 cross 6, 36. 36 possible ways of arranging them before Butler. Easy, straightforward question, right? Let's jump to the next one. Okay, try it on your own. This one for you. चलिए, पॉज. अच्छा क्वेश्चन है ये, टाइम टेकिंग लॉन्ग है ये, इसमें 2-3 मिनट देना. चलो, एज्यूमिंग आपने किया है ना, विदाउट चीटिंग किया, तसल्ली से किया. ओके, चलो मेरी बारी. लेट्स ट्राई. In how many ways 7 different chocolates can be distributed to A, B, and C such that at least one, कम से कम एक जना gets exactly 1 chocolate. तो एक बंदे के पास तो एक चॉकलेट पक्का है, राइट? एक बंदे के पास तो एक चॉकलेट पक्का है, मतलब एक नंबर तो फिक्स ही है आपका, 1 रहेगा. बाकी दोनों कुछ भी देते रहो. अब 1 हो भी सकता है ना, कि पता नहीं, बट एटलीस्ट 1 शुड गेट एग्जैक्टली 1. टोटल 7 है. अब अगर 7 में से 1 चलेगी, बची 6, तो या तो 0 6 बांट लो, या 1 5 बांट लो, या 2 4 बांट लो, या 3 3 बांट लो. 4 2 बांटोगे, बात फिर से वही सेम हो जाएगी, ये वाला केस आ जाएगा. 5 1 फिर ये वाला हो जाएगा, 6 0 ये वाला हो जाएगा. तो ये 4 केस हैं.
अब ये पता नहीं कौन सी ए के पास है, कौन सी बी के पास है, कौन सी सी के पास, पर ये 4 केस है और चॉकलेट भी सारी डिफरेंट है। तो डिफरेंट चॉकलेट्स का ग्रुपिज्म करना है। 7 चॉकलेट को 106 में बांटेंगे तो कैसे बटेगा? 7 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, ये हो गया ग्रुपिज्म। अब 3 ग्रुप बन गए हैं 1, 0 और 6 के, राइट। मल्टीप्लाई कर दो 3 फैक्टोरियल से, ये ग्रुप बने। ग्रुप हुआ 7 लोगों का 1, 0, 6 में, ऐसे करते हैं, अगर नहीं पता तो सीख जाओ। टोटल लोग जिस ग्रुप में बांटना है, ये ग्रुप बन गए। 3 लोग में 3 ग्रुप बांट दिए 3 फैक्टोरियल से, ये दोनों 1, 7 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल बन जाएगा 7, 3 फैक्टोरियल बन जाएगा 6, यानी 42 वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग लाइक दिस। ऐसे ही ये वाला निकालो, ये दोनों बाद में निकालेंगे, क्यों? इनमें लेटर रिपीट हो रहा है ना, उसका देखेंगे क्या होता है इम्पैक्ट। तो पहले ये वाला निकाल लेते हैं। ये हो गया 7 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, 3 ग्रुप बने 7, 1, 2, 4, और ये बांट दिया। इसको भी थोड़ा बहुत काटते हैं, है ना। 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल का सिर्फ 4 छोड़ देगा। 7 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल मेरे को पता है 720 होता है, इसलिए मैंने तोड़ दिया 7 इंटू 6 फैक्टोरियल से। 4 और 2 8 बचा, तो 8 90 जा और 97 जा, हो गया 630 यहाँ से। फैंटास्टिक। ये वाले सर कैसे करते हैं? देखो गेम सेम है। 7 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल को हम 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर बोल देते हैं, और साथ में 5 फैक्टोरियल। अगर नंबर सेम हो तो यहाँ पे 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर आएगा, ये जो भी पावर है वो एक एक्स्ट्रा और आ जाता है, तो ये 2 का एक एक्स्ट्रा और आ जाएगा। अब ये ग्रुपिज्म हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन में कोई इंपैक्ट नहीं, 3 डिफरेंट ग्रुप, 3 लोग में बट गया। इतना केस, ये 2 फैक्टोरियल इसका 3 बना देगा, राइट। 7 फैक्टोरियल 5, ये तो 1 ही है, खत्म हो गया। ये 5 फैक्टोरियल इसका 5 फैक्टोरियल ले जाएगा, बचेगा क्या? 7, 1, 6, 5 फैक्टोरियल ये ले गया, इसका बचा 3, 7 6 जा 42, 42 3 जा 126। परफेक्ट, राइट। नाउ द लास्ट वन। अब इसमें भी ऐसे ही बटेगा, कैसे? 7 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर, और ये 2 की वजह से 2 फैक्टोरियल, और ये हो गया ग्रुपिज्म। ये 3 लोगों में ग्रुप बट गया, एक फैक्टोरियल कट जाएगा। अब वापस इसको लिख देते 7 इंटू 6 फैक्टोरियल विच इज 720, हमें मालूम है। 3 फैक्टोरियल 6, 6 2 जा इज 12, 1 खत्म है, 12 60 जा, राइट, यानी 420 और आ गया। ये पॉसिबल 4 तरीके थे, उन चारों के टोटल केसेस हमने निकाल लिए। नाउ टाइम टू ऐड। 630 420 600 400 1000 1050 1050, तो यही हो गया। ये हो गया 120 140 168, तो ये हो गया 168 और 50 218, तो 1218 1218 P is your answer. Calculation should be smart. 6 फैक्टोरियल 720 का यूज किया, 7 फैक्टोरियल नहीं पता, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल जहां जहां जरूरत पड़े लिखते रहे, राइट। ग्रुपिज्म कैसे करते हैं आपको पता चल गया है। 7/106 7/124, जैसे ही 2 1 आ गए तो पावर का एक और फैक्टर आ जाएगा, दैट्स इट, राइट। डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो अगर वो 2 ग्रुप में सेम नंबर ऑफ आइटम भी हुई तब भी ग्रुप तो डिफरेंट ही रहेगा ना, क्योंकि आइटम्स ही अलग अलग है। भाई एक को मिले रेड ब्लू येलो कलर, एक को मिले ग्रीन ब्लैक ब्राउन कलर, बात तो अलग है, राइट। तो दिस वॉज अ लिटिल टफ वन, राइट। अब इस केस में आप छोड़ सकते हो, गैस लिख सकते हो, वट एवर, राइट। क्वेश्चन 12, प्रोबेबिलिटी, ट्राई a base theorem question. Pause and try guys, no cheating, right? You need to tell me कि आपके कितने बन रहे हैं, ताकि मैं अगला जो इस पे वीडियो करूं वो उससे डिफिकल्ट करना है, आसान करना है, पता तो तभी चलेगा ना। चलो ट्राई करें। ओके, टू सिलेक्ट अ ग्रुप आउट ऑफ 3 एन अनबायस्ड die is rolled. If the die shows 1 then group X is chosen. ओके, तो अगर आपका डाई में 1 आया तो X चूज करोगे, यानी कि X चूज होने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, राइट। क्योंकि X कब चूज होता है? सिर्फ 1 पे, तो 1/6 प्रोबेबिलिटी। Y कब चूज होता है? अगर आपका 2 और 3 आए तो, यानी Y चूज होता है 2 नंबर्स पे आउट ऑफ 6,
तो 2/6 यानी कि 1/3, तो y के चूज होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/3। सिमिलरली इफ 4, 5 और 6 occurs then group Z is chosen। तो Z कब चूज होता है? 3 नंबर पे, तो Z चूज होने की प्रोबेबिलिटी 3/6 यानी कि 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ X, प्रोबेबिलिटी ऑफ Y, प्रोबेबिलिटी ऑफ Z। The group X has 3 girls and 2 boys. Okay. Group Y has 3 girls and 4 boys. Z has 4 girls and 5 boys. The dice is rolled and the group is chosen. Okay. If it is known that the girl is chosen, तो भाई फाइनल क्या हुआ है? गर्ल चूज हुई है, तो हमें गर्ल्स की सारी चेन बनानी है। अब X में कितनी गर्ल्स थी? 3/5, तो यहाँ पे गर्ल चूज होने की प्रोबेबिलिटी थी 3/5। Y में कितनी गर्ल्स थी? Y में थी 3 गर्ल्स 4 बॉयज, तो यहाँ पे गर्ल चूज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 3 आउट ऑफ टोटल विच इज 7। Z में गर्ल्स कितनी थी? Z में बात करें 4 गर्ल्स थी 5 बॉयज था, तो गर्ल की प्रोबेबिलिटी 4 गर्ल्स आउट ऑफ टोटल 9। दीज आर द चेन्स। नाउ वी नो दैट अ गर्ल इज चोजन, तो हमने गर्ल की चेन बना दी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी इज चोजन फ्रॉम ग्रुप Y। ये हो गई हमारी फेवरेबल चेन, राइट। तो सारी चेन का प्रोडक्ट यहाँ लिख देते हैं, फिर आपको आता है ये बेस थ्योरम, फेवरेबल चेन अपॉन सम ऑफ ऑल चेन्स। तो दिस इंटू दिस, ये चेन आ रही है 1/3 इंटू 3/7 यानी कि 1/7। ये चेन कितनी आ रही है? 3 1 जा 3 2 जा 1/2 इंटू 5 यानी कि 1/10। ये हाफ इंटू 4, 2 1 जा 2 2 जा 2/9। तो हमने तीनों चेन के प्रोडक्ट करके लिख दिए। दिस इज द प्रोबेबिलिटी फॉर दिस चेन, दिस इज द प्रोबेबिलिटी फॉर दिस चेन, दिस इज द प्रोबेबिलिटी फॉर दिस चेन। नाउ यू आर आस्किंग फॉर y, यानी कि बेस थ्योरम लगाते हैं, फेवरेबल चेन अपॉन सम ऑफ ऑल द चेन, 1/10 प्लस 1/7 प्लस 2/9। गेम ओवर, राइट। अब पूछने का जवाब आपको एलसीएम लेना है, थोड़ा शॉर्ट करना है। ये हो गया आपके पास 1/7 ऐसा का ऐसा, इसके पास तो कुछ है नहीं। इधर आपके पास एलसीएम आ जाएगा 630, राइट। 7 9 63 630। 10 को कितना मिलेगा? 63। यहाँ पे कर लेते हैं सब। पहले वाला आएगा 63, यहाँ कितना आएगा? 10 9 जा 90, यहाँ कितना आएगा? 10 7 जा 72 जा 140। तो 140 90 230 293। 7 1 जा 7 90 जा 90 ऊपर चला जाएगा। फाइनल आंसर 90/293, यानी कि ऑप्शन सी फॉर कैट, राइट। Bayes theorem, simple question. Draw all the chains, favorable chain upon sum of all the. Hope you got it. Take care. Right. And I hope you get all these questions right. Right. आगे बढ़े. Let's go. Question 13. Try on your own. Okay. Another probability question. Right. चलो खुद से करो. Come on. Mohini and Rohini are classmates. Mohini speaks truth 6 out of 9 times. All right. तो यहाँ मोहिनी की प्रोबेबिलिटीज लिख लेते हैं। तो मोहिनी में ट्रू की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? स्पीक्स ट्रूथ 6 आउट ऑफ 9 टाइम्स, तो 2/3। 3 से कटा ना, 3 2 जा 3 3 जा, तो 2 आउट ऑफ 3 ये ट्रूथ बोलती है। तो लाई कितने टाइम बोलती होगी? 1/3 टाइम्स। और रोहिणी स्पीक्स ट्रूथ 3 आउट ऑफ 6 टाइम्स, यानी 1 आउट ऑफ 2 हो गया। तो रोहिणी का काम सिंपल है, रोहिणी का 50-50 है। इसकी ट्रूथ की प्रोबेबिलिटी भी हाफ, इसकी लाई की प्रोबेबिलिटी भी हाफ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, मतलब ये अलग अलग बोले, एक ट्रुथ बोले तो एक लाई बोले। कॉन्ट्राडिक्ट तो तभी करेंगे, इवेंट हुआ भाई वहां पे, मान लेते 12 बज रहे हैं, इसने बोला 12 बज रहे हैं, इसने बोला 2 बज रहे हैं, ये ट्रुथ ये लाई। इसने बोला 2 बज रहे हैं, वो बोल रही है 12 बज रहे हैं, ये लाई ये ट्रुथ, तभी तो कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे ना। इफ वन पर्सन सेज द ट्रुथ, वन पर्सन सेज द लाई। तो आइदर यू कैन कॉन्ट्राडिक्ट दिस वे और यू कैन कॉन्ट्राडिक्ट दिस वे। ऐसे कॉन्ट्राडिक्ट करोगे क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ये सच बोले और ये झूठ बोले, 2/3 इंटू 1/2, यानी कि 1/3 प्रोबेबिलिटी, ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन हुआ। या फिर ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन होगा, दैट इज 1/3 इंटू 1/2, यानी कि 1/6। तो आइदर यू कॉन्ट्रडिक्ट दिस वे और दिस वे, सो दिस प्लस दिस, राइट, दिस और दिस, समझ रहे हो? शी सेज ट्रुथ एंड शी सेज लाई, तो मल्टीप्लाई, और मतलब प्लस, शी सेज लाई एंड मतलब मल्टीप्लाई शी सेज ट्रुथ, समझा? 1/3 प्लस 1/6, सम 6, 3 2 जा 6 1 जा 3/6, that's half.
So 50% of the times they are going to contradict, 50% of the times they are going to be on the same page. We got it? Nice, simple and straight. Alright, so we're done with 13. I hope you have got somewhere around 9 or 10 maybe correct, right? Only 1 or 2 were very typical, rest were doable. So, एक और question number 14. Try it out. This is a nice one. Algebra. Complete algebra question mixing it with series. ये यार ट्राई करो खुद से यार, ये आंसर बनाओ, कॉन्फिडेंस आएगा तो वन ऑफ द गुड वंस एज कंपेयर्ड टू द अदर्स, यू शुड गेट इट करेक्ट and gain some confidence. X, Y, Z, 3 consecutive numbers, and it is given that log 1 plus xz equals to 2a. Find a. Okay. X, Y, Z are 3 consecutive integers. So what you know is that X, Y, and Z are consecutive integers. That means they are in AP, right? So in that case, you already know X plus Z is equals to 2y. So this is something which you already know. All right. Or you can also say that means the numbers can be written as x, y, z. What we see is कि यहाँ पर x और z है, right? यहाँ पे कुछ options दे रहा है, कैसे हम एक वेरिएबल में लेके जाएं? जनरली आपने एपी में करा ना, 3 नंबर माने होते हैं, a माइनस डी ए और a प्लस डी मानते हो. अब यहाँ पर मैं कैसे सॉल्व करूंगा? तो इट्स बेटर कि मैं सबको क्या y की फॉर्म में लिख सकता हूँ. यस, मिडिल को y मानते हैं, छोटे वाले को y माइनस वन और z को y प्लस वन, ऐसे भी 3 नंबर माने जा सकते हैं. इससे एटलीस्ट हमारे पास सब y में चला जाएगा, राइट? एक वेरिएबल में तो जाएगा. अब यहाँ पे लगाते हैं जरा इसमें, तो ये बन गया लॉग 1 प्लस वाई, एक्स की जगह y माइनस वन, जेड की जगह y प्लस वन. नाउ एवरीथिंग इज इन वन वेरिएबल. शायद काम बन जाए, और नहीं बना तो फिर कुछ और सोचेंगे. तो ये है 2a के बराबर. ये हो गया लॉग 1 प्लस a माइनस बी, ए प्लस बी, वाई स्क्वायर माइनस वन, 1 से 1 कटा, लॉग वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2a. ये 2 उड़ के पीछे आ जाएगा, तो 2 लॉग वाई इज इक्वल्स टू 2a. 2 से 2 कट गया, a कितना आ गया, लॉग वाई. लो, बात बन गई, काम खत्म हो गया. तो गुड क्वेश्चन. ये सोचना थोड़ा सा मुश्किल है, पर हम कैसे सोचेंगे? आइडिया इज सिंपल. वेन एवर यू सी AP का क्वेश्चन और नंबर्स इन AP एंड इन द टर्म और इन द मैनिपुलेशन, या फिर जो भी एक्सप्रेशन वो इंक्लूड कर रहा हो क्वेश्चन में, उसमें दिस इंटू दिस लिखा हो, राइट? तो आप समझ जाना, ए वाई माइनस वन वाई प्लस वन करवा के तुमसे मल्टीप्लाई करवाना चाहता है ताकि ए माइनस बी ए प्लस बी लगवा सको. या फिर कभी दिस प्लस दिस भी लिखा हो तो भी समझ जाना वो आपसे ये करवाना चाहता है ताकि आप ऐड करो, माइनस वन से प्लस वन कट जाए. तो AP में अगर आपको 3 नंबर मानने पड़े जिसमें आपका x और z को लेके मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो या x और z को लेके एडिशन हो रहा हो, आप ऐसे ही नंबर्स रखते हो, आपका रिजॉल्व तभी होता है. और अगर GP की बात हो तब भी आप नंबर्स a बाय r, a और AR रखेंगे. अगर मल्टीप्लाई हो रहा होगा पहला तीसरा, ऐड हो रहा होगा तो a AR और AR स्क्वायर ज़्यादा फायदे का रहता है. ठीक है, AP में तो यही फायदे के रहते हैं, चाहे ऐड हो रहे हो या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो. चलो, let's go guys. Question number 15. Try it on your own based on polygons and geometry. Equilateral triangle rather. Chalo. Hope you have tried it. Now it's my turn. If you haven't, don't continue to watch the video. Pause and try it on your own. My turn, right? From each vertex of an equilateral triangle with area of 240 square units, corners are cut out to form a regular hexagon. ठीक है, पहले फिगर समझते हैं. एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है अपने पास, फैंटास्टिक. साइड के अपने को पता नहीं, बट फिर आपने इसके कॉर्नर्स काट दिए. एक कॉर्नर ऐसे काटा होगा, एक कॉर्नर ऐसे काटा होगा, एक कॉर्नर ऐसे काटा होगा. अब आपको दिख रहा होगा कि आपके पास एक हेक्सागन मिल गया है, राइट? तो ऐसे आपने 3 कॉर्नर्स काट दिए. फाइन. और रेगुलर हेक्सागन है, मतलब ये A है तो ये A है, ये A है, ये A है, ये A है, ये A है. इनफैक्ट सोचने वाली बात यह है कि देखो, अगर ये रेगुलर हेक्सागन है तो इसके एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री होंगे, राइट? एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं? 360 बाय सम ऑफ 360 बाय n, n इज रिप्रेजेंट्स द साइड्स. कितनी साइड है? 6. 360 बाय 6, 60 60. और इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो ये तो 60 था ही. तो ये सब 60 हो चुके हैं, तो यानी कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है. तो ये A है
तो ये भी ए थे। सिमेट्री से आप कह सकते हो कि ये सबके सब ए थे। परफेक्ट। आपसे पूछ रहा है एरिया ऑफ दिस हेक्सागन। एरिया ऑफ दिस हेक्सागन इज 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर, साइड स्क्वायर है ना, ये पता होगा एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन। अब दे कह रहा है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया कितना था √3/4 साइड स्क्वायर, और इसकी साइड कितनी है ए 2a 3 है, इसकी साइड है 3 है, तो √3/4 3a स्क्वायर इक्वल्स टू इसका एरिया कितना है 240। स्मार्ट कैलकुलेशन करनी है। यहां से √3/4 a स्क्वायर निकालूंगा, पूरा पूरा वहां डालूंगा, एक 3 तो एक्स्ट्रा है। अगर मैं इसका खोलता हूं तो ये बनेगा 9a स्क्वायर, राइट। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो ये बनेगी √3/4 a स्क्वायर, 3a का स्क्वायर क्या बनेगा 9a स्क्वायर, a स्क्वायर ही हो गया, 9 बाहर ले जाते हैं, यही तो लिखा ही है। दिस इज इक्वल टू 240। तो √3/4 a स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 240/9। भाई ये यहाँ से हटाओ, इसके नीचे भेज दो, आगे इसकी पूरी वैल्यू यहाँ चिपका दो। यानी तुम्हारे हेक्सागन का एरिया क्या होगा 6 इंटू 240/9। तो 9 में 2 3 है, 2 3 कटने के लिए तैयार है, एक 3 ये संभाल लेगा, एक 3 ये संभाल लेगा। आंसर कितना आ गया 160। डी फॉर बाटला। स्मार्ट तरीका है, √3 लेके उधर √3 पहुंचा दिया, ए निकाल रहे हैं रूट ऑफ √3, परेशान हो गए, ये क्या हो गया। कैलकुलेशन ऑब्जर्व तो करो ना यार, यहाँ पे भी √3/4 a स्क्वायर बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है। यही तो खास बात है ना एरिया ऑफ इक्विलर ट्रायंगल और हेक्सागन में, दोनों में √3/4 a स्क्वायर बनता है, ऊपर से दे आर वेरी वेरी रिलेटेड। So that was chat. How many were you able to do? Accordingly, the next 15 or 16, whatever I bring, I'll either increase the level or decrease the level so that they are most beneficial for you. But today's level was the PYQs collaborated from the past year snap. So they were exact level of snap from the past recent years. Okay. अब आप बताना level बढ़ाएं या कम करें. Take care. All the best. I hope you enjoyed this little video covering the snap as well. बाकी cat तो अपन live चला ही रहे हैं. ठीक है. Bye bye.